Today we are going to study about the physical layer in the OSI model. And for this, first of all, we are going to study about the type of medium which we are going to use. For this, the first type of medium is the copper cabling. In the copper cabling, there are two types of cables. One is the shielded twisted pair and other is the unshielded twisted pair cabling. Now, if I tell you about the shield difference between these two cables, so first of all, we are going to study about what twisted pair cable is. So this is the most common type of cabling which is used in our local area networks. It consists of a pair of wires which are twisted together so they can reduce the interference and the crosstalks. Now, if I talk about unshielded twisted pair cabling, so unshielded twisted pair cables they are widely used due to their low cost. However, they lack shielding. They have because the shielded twisted pair cable have an extra layer of shield, but they lack that shielding. However, they lack the shielding, so making them more prone to the external electromagnetic interference. They are commonly used in Ethernet networks, for example, Cat5 and Cat6. Now, if I talk about a bit about the shielded twisted pair, so shielded twisted pair cables, they have an additional layer of shielding around. You see, they have an additional layer of shielding around. And this shielding is used to reduce the electromagnetic interference from outside. Now, if I talk about the coaxial cable, so coaxial cable is now, people don't use coaxial cables anymore now. But coaxial cable, it consists of a single copper conductor. It consists of a single copper conductor surrounded by an insulating layer and a metallic shield. They were traditionally used in our cable televisions and early Ethernet networks, offering a good resistance to interference. But nowadays, the most common type of cabling which is used is the optical fiber. If I talk a bit about optical fibers, so there are two types of actually fibers. One is the single mode and another is the multi-mode fiber. Now, the single mode fiber. Single mode fiber cables have a narrow core and they use laser light to transmit data over long distance. They support high bandwidth and are ideal for long distance communications such as दो शहरों के दरमियान बात करने के लिए. So they are very much ideal for this. Now, if I talk a bit about the multi-mode fiber, so the multi-mode fiber has a thick core. It has a thick core around and uses LED light for data transmission. It is more cost effective but supports shorter distances compared to single mode fiber, making it a suitable range applications like within small buildings it can be used. So nowadays people are want to use optical fibers but they have high costs, so it's difficult to use these cables right now. Now today we're going to study about first of all the shielded and the unshielded twisted pair cables. ओके तो हम बात ही कर रहे थे लेडीज एंड जेंटलमैन कि आ, वैसे हाँ जी मैंने एक डायग्राम बनाया था। दोबारा यहाँ बनाता हूँ कि जनाब ये वो टेलीफोन एक्सचेंज है। इस टेलीफोन एक्सचेंज से मिसाल के तौर पे जो कि खैबर रोड पे आपने बताया, ये आर डी खैबर रोड पे, यहाँ से मैंने एक 300 पेयर का अंडरग्राउंड केबल ले जाके एक मिसाल के तौर पे यूनिवर्सिटी के बाहर तक पहुंचा दिया और यहाँ पे मैंने एक डिविजनल कैबिनेट लगाया। इससे मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर 3 डायरेक्शंस में 100 पेयर्स आगे लेकर चला गया, 100 पेयर्स आगे लेकर चला गया। हर एक 100 पेयर के मैंने डिस्टेंस पे एक एक पोल खड़ा कर दिया, एक एक पोल खड़ा कर दिया और मिसाल के तौर पे 10-10 पेयर्स यहाँ पे टर्मिनेट कर दी। नहीं 10 टर्मिनेट यहाँ हो गए तो 90 आ गए, 90 में से 10 यहाँ टर्मिनेट कर दिए तो आगे 80 आ गए, 10 यहाँ टर्मिनेट कर दी तो आगे 70 चले गए एंड सो ऑन।
अब यहाँ हर एक 10 पेयर में से एक एक पेयर उठा के मैं घरों में, ये घर नंबर 1 है, ये घर नंबर 2, 3, 4, हर एक को मैं एक एक पेयर प्रोवाइड कर देता हूं। तो आप देख रहे हैं कि यहां से कॉपर स्टार्ट हुआ और यहां भी कॉपर आपके घर तक पहुंचा और आपके टेलीफोन को आके लग गया। ये था आज से चंद साल पहले का सिनेरियो। फिर कंपनी ने सोचा कि लाजमी तौर पे हमारी कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, ये कॉपर हमारा काम नहीं कर सकती। तो उन्होंने ये किया कि यहां से इस कॉपर को रिमूव कर दिया और इसकी जगह यहाँ पे फाइबर डाल दिया, यहाँ पे जी, जमीन के अंदर फाइबर डाल दिया अंडरग्राउंड। अब इस फाइबर का इसका मतलब है कि वो यहाँ पे इसको लाइट में कन्वर्ट करते थे, इलेक्ट्रिकल, या तौर पे इसके अंदर तो इलेक्ट्रिकल ही है, अंदर तो इलेक्ट्रिकल ही है, तो लेकिन इसको ट्रांसमिट करने से पहले लाइट में कन्वर्ट कर देते थे और लाइट की फॉर्म में ये आपके, जैसे अभी हमने कहा मिसाल तो पे यूनिवर्सिटी की गेट के पास पहुंच गया, कैंपस की गेट पे पास पहुंच गया। अब इस कैंपस की गेट पे इसको दोबारा इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके और आगे उसी तरह ट्रीट किया जाता था। तो इस अमल को नाम दे दिया गया फाइबर टू द कर्व। ठीक। फिर क्या हुआ, फिर जब हम बढ़े तो जमाने ने कहा कि नहीं, हमें और लाजमी तौर पे यहां तो स्पीड अच्छी हो गई लेकिन यहां तो अभी भी कॉपर है। फिर हमने क्या किया कि हमने कहा ठीक है जी, हम यहाँ पे इसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट नहीं करते, हम इसको फाइबर पे लाते हैं और आपके यहाँ पे एक स्प्लिटर लगा देते हैं या एक राउटर लगा देते हैं, ऑप्टिकल राउटर। इसका मतलब कि हमने इसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट नहीं किया और आपकी बिल्डिंग तक आपकी इसको मैंने रिमूव कर दिया और एक डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि ये अब अगेन फाइबर, और ये आपकी बिल्डिंग है। यहाँ पे मिसाल के तौर पे आप एज्यूम कर रहे हैं कि पेशावर यूनिवर्सिटी का जो एकेडमिक ब्लॉक है, ये चले हमारा एकेडमिक ब्लॉक है, इस एकेडमिक ब्लॉक के तक हमने फाइबर पे पहुंचा दिया। यहाँ पे आके हमने इसको वापस इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया और इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में फिर इस बिल्डिंग के अंदर हमने तारे बिछा दी। इसको नाम दिया गया फाइबर टू दी बिल्डिंग, फाइबर टू द बिल्डिंग। फिर क्या हुआ, क्या मतलब कि यहां तक तो लाजमी तौर पे हमें यहां से लेके टेलीफोन स्टेशन से लेके यहां तक तो हमें फाइबर में मिला, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट फ्लोर्स हैं, उन फ्लोर्स में कॉपर जा रहा है। फिर हमें एक और मसला आया कि क्यों ना हम ये जो पार्ट जो कि कॉपर पे है इसको भी रिमूव कर दें, इस कॉपर को भी रिमूव कर दें और हम यहाँ पे, जैसे कि अभी आपने कहा कि आपके गली में मोहल्ले में कहीं बाहर एक पोल के ऊपर एक ऑप्टिकल डिवाइस लगा हुआ है, उस ऑप्टिकल डिवाइस से हर एक के घर तक एक एक कॉपर की बजाय फाइबर लेकर जाओ और उसके घर पे जाके इसको फाइबर को यानी लाइट को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करो और इलेक्ट्रिकल फिर आगे ला दो, तो उसका लैपटॉप है कि जो भी है वो इस्तेमाल करे। तो इसको नाम दिया गया फाइबर टू द होम, क्योंकि आप फाइबर आपके घर तक पहुंच चुका है। अब कहीं जी कोई मसला, कोई मसला? तो यहां पे क्वेश्चन जो था, ऑल क्लियर सर, नाइस। और और कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है जी। तो ये तो हो गया आपके सवाल का जवाब। आपने क्वेश्चन किया कि जी हमारे इलाके में लोग क्या करते हैं, ठीक है। वो ये कहना चाहते हैं कि नॉर्मली जो, मिसाल के तौर पे अगर आप इस एक्सेस रूटर को देखें तो एक्सेस रूटर साहब अगर यहाँ पे लगा हुआ है, इस दीवार छत पे पड़ा हुआ है अंदर, लेकिन ये दीवार के बड़े करीब है, तो अगर ये इधर 15 फीट दे रहा है तो ये 15 फीट इधर भी दे रहा है। अगर मैं 15 फीट कहता हूं तो 20 फीट कह लें, 20 फीट इधर भी देता है, इधर भी देता है, इधर भी देता है, उधर भी देता है। लेकिन उसमें तो बसें खड़ी हैं, बसों को क्या जरूरत। लेकिन इसको नहीं पता कि जी मैंने इधर 20 फीट पीछे की तरफ नहीं देना। लेकिन पावर तो इसका मतलब ये पावर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है 360 डिग्रीज पे।
मैंने मैंने इवन ये नहीं कहा कि ऊपर भी दे रहा है, मैंने ये नहीं कहा कि नीचे वाली पे उसको भी दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। तो ये 360 पे, जैसे एक लाइट का बल्ब आप ले लें और वो 360 डिग्री हर तरफ जैसे कि लाइट दे रहा है, एक बल्ब आपने लटकाया हुआ है तो वह पूरे कमरे को रोशन कर रहा है। लेकिन अगर आप उसकी यही लाइट को फोकस कर दें एक डायरेक्शन में, तो उतनी वॉट्स में वो और इलाकों को नहीं करेगा, वो सिर्फ एक डायरेक्शन को बेहतर वो करेगा। इसका मतलब है कि जो पहला केस मैंने एक्सप्लेन कर रहा था उसको कहते हैं ओमनी डायरेक्शनल, यानी इन ऑल डायरेक्शन। लेकिन जब आप, जैसे आपने कहा, मिसाल के तौर पे इस एंटेना को इस एंटेना को लेट करें कि 1 वॉट मिल रहा है, तो पहले ये 1 वॉट 360 डिग्रीज पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। अब आपने इस ओमनी डायरेक्शनल को कन्वर्ट कर दिया एक डायरेक्शनल एंटेना, जैसे मिसाल के तौर पे पैराबोलिक एंटेना। तो अब लाजमी तौर पे वो इस 1 वॉट को पहले एज्यूम करें कि जब ओमनी डायरेक्शनल था, तो एज्यूम कर लेते हैं कि प्रोबेबली 200 मीटर तक ये हर डायरेक्शन में इसका सिग्नल मिल रहा था। अब जब ये एक ही डायरेक्शन में गिरा रहा है, तो प्रोबेबली अब ये 500 मीटर तक इधर तो जाएगा, लेकिन इधर ये कोई 5 मीटर भी नजर नहीं आएगा। इसको कहते हैं बीमिंग, कि आपने एक बीम बना दी है वायरलेस उसकी रेंज बढ़ाने के लिए। तो ये उस केस में किया जाता है जब आपको पता हो कि इसके अलावा मुझे और किधर नहीं देना। जैसे मिसाल के तौर पे, एक वक्त में मैं पीटीसीएल में काम करता था, तो मेरे पास हैदराबाद ये फेज 3 एक्सचेंज थी और इसके साथ कनेक्टेड था बाड़ा एक्सचेंज। अब ये बाड़ा एक्सचेंज लाजमी तौर पे एक खास डायरेक्शन में थी, ये बाड़ा और ये हैदराबाद एक्सचेंज। अब यहां से सिग्नल इधर, एक तरीका तो ये था कि उसके जरिए किया जाता, फाइबर बिछाया जाता, या कोई कोएक्सियल के बिछाई जाती। लेकिन उस वक्त एक तो वहां पे इतने कनेक्शन भी नहीं थे बाड़ा में, नंबर 1। नंबर 2, हालात भी इतने कंट्रोल में नहीं थे। मतलब वहां पे तो ये एक किस्म का कल्चर है, शायद आपको पता हो कि ये अफरीदी है। अगर इसके तरबूर के घर में टेलीफोन ठीक हो और इसके घर में खराब हो, तो ये क्या करता है, कहते हैं तरबूर टेलीफोन कार का ही हो जमान न कही। तो ले जाता है सुबह क्लाशनकोफ, और जो मैंने अभी आपको बताया कि हमारा बक्सा वहां पे लगा होता है, उसको एक एक डर करता है, कहता है फारा करने को कि उस तरबूर नंबर संभाले। तो ये, क्योंकि मैं वहां रहा हुआ, मुझे पता है कि वहां पे बड़ा को सोचना पड़ता था कि ये कर क्या रहे हैं। वैसे खुदा के बंदे, तुम्हें नहीं मिल रहा तो तुम्हारे इलाके के लोगों को तो मिल रहा है ना। तुम कहते हो कि ना दागे कार कही और जमान कही दा सिंगा बकीगी, सारे को खत्म कर दो। फिर 2 महीने ना इसके होता था और ना उनका होता था, लाजमी तौर पे। तो कहने का मकसद ये है कि अब मेरे लिए, मुझे पता था कि मेरा बाड़ा किस तरफ है, तो मैं फिर इस तरफ, इस सिग्नल को इस तरफ क्यों ट्रांसमिट करूं, इस तरफ क्यों ट्रांसमिट करूं, इस तरफ क्यों ट्रांसमिट करूं। तो यहाँ पे हम फिर क्या इस्तेमाल करते थे, यहाँ पे हम पैराबोलिक एंटेना इस्तेमाल करते थे, क्या कि पैराबोलिक एंटेना यहाँ पे और इनके दरमियान में कम्युनिकेशन। अब क्लियर हो गया। तो इसको कहते हैं बीमिंग, जो कि इसकी रेंज को और इसके फोकस को इंक्रीज कर दे। मेक सेंस? ठीक है। एनी ऑनलाइन स्टूडेंट? फिजा, हामिद, हमाद, भतीजा, अरसलान, निमरा, शफक। शफक पहली क्लास में नहीं थी। 2 क्वेश्चंस आगे जी। एक मिनट जी, पहले मैं देख लूं कि यहाँ पे क्या न्यू लिखा है। वीजा लिखती है सर जी, समझ आ रही है, गुड। भतीजा भी कहती है कि यही, हमाद कहता है क्लियर है, निमरा कहता है यस सर। तो एवरीथिंग गुड। अब बताएं जी, कौन सी टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई? नहीं, वायरलेस जो है जी, देखे ना, जब
अब आपने आपने वो बात बीच में रह गई कि यहाँ पे क्यों पीटीसीएल एक फाइबर नहीं डालती थी, क्योंकि अगर तरबूर को ये भी पता चल गया कि 2 फुट के नीचे कॉपर बिछी हुई है या फाइबर भी गया हुआ है, तो उसने 2 फुट पे निकाल के बाहर फेंकना है इसको। तो हाँ, और हर रोज ऑप्टिकल फाइबर को दोबारा ले करना या उसको स्लाइस करना आसान नहीं है। तो ऐसी जगहों पे जहां पे ये मुमकिन नहीं होता कि आप, मिसाल के तौर पे एक ऐसा दूर का गांव है जहां पे आप समझते हैं कि इतने कस्टमर भी नहीं है कि मैं फाइबर डालूं। कंपनी तो लाजमी तौर पे एक आपको अंडरस्टैंड शायद ये बात होगी कि इकोनॉमिक्स को देखती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को देखती है। मिसाल के तौर पे एक गांव है, वहां पे 20 कस्टमर है, तब 20 कस्टमर के लिए तो मैं ऑप्टिकल फाइबर नहीं डाल सकता। तो लाजमी तौर पे मैं उनके लिए, और बाजू का ऐसा प्रेशर्स भी होते हैं कि नहीं जी आपने इस गांव को देना ही देना है, वहां पे मेरे 500 वोटर्स हैं। तो फिर आप उनके लिए इसी किस्म का सोल्यूशन लेकर आते हैं कि चलो जी मैं आपके लिए ऑप्टिकल फाइबर की बजाय एक 2 टावर खड़े करता हूं, आपके लोगों को 10-20 लोगों को मिल जाएगा, और आप उस पर तालियां भी बजा लेंगे और अपने 500 वोटर को बता भी देंगे कि जी गोरा टेलीफोन मेरा उड़ो। तो देखा ही ये जाता है कि सिचुएशन क्या है। तो जैसे मैंने अभी आपको शायद कल भी बताया था कि एक वक्त में पीटीसीएल ने वी फोन लॉन्च किया था। क्यों किया था? भैया ऑप्टिकल फाइबर डालते नहीं, वो बनाया ही इसलिए गया था कि जो रूरल एरियाज हैं जहां पे इतनी डेंसिटी नहीं है कस्टमर्स की, लेकिन उनमें से फिर भी कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है कि हम वहां पे फाइबर डालें, हम वहां पे अपना पूरा नेटवर्क डालें और पता चले 20 फोन लगे हैं। तो हम 20 फोन वालों को वी फोन दे दें, वो वी फोन लेके अपने गांव में जाके अपने घर में जाके रख दे और हेलो करता रही। तो ये टेक्नोलॉजी खत्म नहीं हो सकती। जी। सैटेलाइट इज डिफरेंट, बीमिंग इज डिफरेंट। बीमिंग जो है डे अर्थ टू अर्थ होता है। यानी कि एक मिसाल के तौर पे जैसे आपने कहा कि आर्मी पड़ी हुई है, तो आर्मी ने एक उनका ऑफिस जो है या जो भी कैंप है वो आपके इलाके में, और उनका दूसरा एंड जो है लेट करें वो कैंट पेशावर में है, जिसके साथ उन्होंने कम्युनिकेट करना है, इंस्ट्रक्शंस लेनी है, एडवाइस लेनी है, वहां की सिचुएशन के बारे में आगाह करना है। तो दैट इज थ्रू बीमिंग इट कैन बी डन, यस। सैटेलाइट है वो ये है कि फिर उसमें जमीन इन्वॉल्व नहीं है। योर एवरी सिग्नल विल गो टू दी सैटेलाइट, एंड सैटेलाइट विल थ्रो इट बैक। इट इज टू एक्सपेंसिव, नहीं इस्तेमाल किया जाता। बीमिंग फिर ये अभी मैंने कुछ देर पहले इस बात पे वो एक्सप्लेन किया था कि इस केस में हम क्या करते हैं कि एक टावर इधर लगाते हैं और एक उस के ऊपर लगाते हैं। तो यहां से हम सिग्नल यहाँ रिसीव करवाते हैं और फिर उसी सिग्नल को पकड़ के आगे फेंकते हैं। तो रिपीटर करते हैं, एम्पलीफायर करते हैं, बूस्ट करते हैं, बूस्टर लगाते हैं और उस एंड पे फिर दे देते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल। हाँ, तो उसमें सैटेलाइट नहीं है ना, यही मैं बता रहा था। ये आसमान की तरफ नहीं है, आपने इधर जो लगाया है ना, वो आपने इसलिए लगाया कि आपका जो ये टॉप ऑफ दी हिल है, मे बी वो 50 मीटर ऊपर है, 100 मीटर ऊपर है, तो उसने उसके साथ इसकी बात करवानी है। तो इसलिए आपको लगता है कि आसमान की तरफ ये है। असल में इट इज ट्रांसमिटिंग द सिग्नल टुवर्ड दिस टावर, और उसको देखे तो वो इस तरफ है। हाँ, पहाड़ बहुत ऊपर है। अब क्लियर हो गया? मेरा ख्याल से नहीं। 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज जो ये फ्री है, और फ्री फ्रीक्वेंसीज जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन आपको किसने कहा 2.4 के इस्तेमाल कर रहे हैं? यानी उसको जब आप रिसीव कर लेते हो तो आप उसको फिर आगे ट्रांसमिट, जो ये डिवाइस है, एक्सेस पॉइंट उठा लो।
अब ये ले आए तो मैं आपको बात करता हूँ। और यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसको भी देख लेता हूँ। कोई भी ले लो, ठीक ये तो नहीं है, ब्लैक सामने ही पड़ा हुआ है। बहुत स्लो होता है क्या? बहुत स्लो होता है जी। सर, डू यू हैव एन आइडिया कि आजकल जो सिम नेटवर्क काम नहीं करते, ये क्यों? वाईफाई भी बहुत स्लो हो गया है। ओके, तो ये जो आपको डिवाइस आपको स्क्रीन पे आपके नजर आ रहा है, जो कि एक एक्सेस रूटर है, ये अगर अपना सिग्नल इसके जरिए या तो 2.4 गीगाहर्ट्ज पे फेंकता है, पीछे से उसको 2.4 नहीं आ रहा, लेकिन ये ट्रांसमिट करता है इधर 2.4 पे या 5 गीगाहर्ट्ज पे। क्यों? क्योंकि ये दोनों फ्री बैंड्स। क्योंकि अगर ये फ्री ना होते तो आप अपने घर में ये लगाते हुए या तो छुप के लगाते कि जी हुकूमत को पता ना चल जाए, और अगर या फिर आप जाके हुकूमत से इजाजतनामा लेते कि जी मैं घर में अपने ये वायरस इस्तेमाल करने लगा हूं, मुझे इजाजत दें, मुझे लाइसेंस दें, मुझे कोई मंथली फी है, कोई एनुअल फी है, तो बताएं कि मैं पे कर दूं। लेकिन दुनिया ने इस चीज से बचने के लिए ये कुछ चंद फ्रीक्वेंसीज फ्री कर दी, तो इसको इस्तेमाल करने पे कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन इसको आप लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते कि आप कहीं फ्री है तो मैं इसको इस टावर और उस टावर के दरमियान में बात करवा लेता हूँ 2.4 गीगाहर्ट्ज में। नो, जी बिल्कुल, तमाम ये एक्सेस रूटर्स ये 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज पे काम करते हैं। और मच मोर डिटेल जो है, जो लोग भी नेटवर्किंग में इंटरेस्टेड हैं, और वो हमारा स्विचिंग राउटिंग वायरलेस एसेंशियल, तो जब वायरलेस एसेंशियल का पार्ट आएगा तो दैट होल थिंग विल बी एक्सप्लेन कि क्यों 5 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज का क्या नाम है, यूनी बैंड कहते हैं, 2.4 गीगाहर्ट्ज का क्या नाम है, आईएसएम बैंड कहते हैं। इसकी सारी डिटेल्स उस कोर्स में एक्सप्लेन की जाएंगी। क्लियर हो गया जी? तो ये तो हो गया आपके सवाल का जवाब। और बाकी जितनी भी कम्युनिकेशन आपको करनी होती है, चाहे वो मिलिट्री को ही करनी हो, दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम दी पीटीए, दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम दी फैब, फ्रीक्वेंसी एलोकेशन बोर्ड। ये दोनों पाकिस्तान में डील करते हैं। पीटीए तो आपने सुना हुआ, फैब मैंने सिर्फ ऐड किया है। तो लाजमी तौर पे आपकी फ्रीक्वेंसीज को गवर्नमेंट ही रेगुलेट करेगी ना। मिसाल के तौर पे अगर आपके हवाले कर दें तो क्यों कर दें? ठीक है ना? तो गवर्नमेंट इन फ्रीक्वेंसीज को वर्ल्ड वाइड, जो इदारे हैं, गवर्नमेंट है, वो ही उसको रेगुलेट करती है। या तो उसके अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनको वो करवाती है, हमारे तो अपने स्टैंडर्ड नहीं हो सकते, लेकिन नहीं आओ। और या फिर जो इंटरनेशनल, मोस्टली ये इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको फॉलो करवाती है। जैसे अब आप मिसाल के तौर पे, जैसे अभी आपने कहा कि जी मेरे गांव में 2.4 गीगाहर्ट्ज पे ये कम्युनिकेशन हो रही है, तो फिर तो बड़ा आसान हो जाएगा। आपका यूफोन कहेगा मैं भी 2.4 गीगाहर्ट्ज पे करता हूँ, टेलीनॉर कहेगा मैं भी 2.4 गीगाहर्ट्ज पे करता हूँ। तो नहीं, दिस कांट बी डन। इसके दो रीजन है ना। एक रीजन, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि कोई भी कंपनी इसलिए नहीं होती, खुदाई खदमतगार कोई भी नहीं है। सिंपल, खुदाई खदमतगार कोई भी कंपनी नहीं हो सकती। दे वांट रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। तो मिसाल अभी आपने कहा, मिसाल के लिए बाड़ा, या बाड़ा के बेगी खजूरी कह लो। अब लेट करें खजूरी के गांव का नाम है, ऐसे ही है ना? अगर मिसाल के तौर पे खजूरी का कितना एरिया होगा? बड़ा एरिया है, पहाड़ी इलाका है, बिल्कुल ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि उसका 5 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। अब यही 5 मीटर स्क्वायर का एरिया पिशावर कैंट में भी एज्यूम कर लो। यहाँ कितनी पॉपुलेशन है, यहाँ पे कितने यूजर्स हैं, और यहाँ कितनी पॉपुलेशन है और कितने यूजर्स हैं,
और यूजर्स भी वो जो के जो के क्वालिटी सेंसिटिव है, क्वालिटी सेंसिटिव है। और यहां कितनी? तो मेरा ख्याल से आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि खजूरी में शायद इससे 1/4 पॉपुलेशन भी नहीं है। ओके, ये बात भी आपने मान ली, अच्छी बात हो गई। नंबर 2, यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं है। खजूरी में कोई भी डिजिटल रिलेटेड बिजनेसेस नहीं है। जबकि पेशावर में बहुत से बिजनेसेस हैं, इदारे हैं, जो कि, इसलिए मैंने कहा दे आर क्वालिटी सेंसिटिव। तो अगर ये बात है, तो ये बंदे ज्यादा पैसे दे, यहां से उसको कंपनी को ज्यादा पैसे मिलेंगे कि यहाँ पे, लाहौर से पेशावर में? तो यहाँ पे ये अपने टावर्स करीब करीब ज्यादा टावर्स खड़े करेंगे, और यहाँ पे टावर एक इधर और इधर कहेंगे अल्लाह दे मलशा। तो लाजमी तौर पे फिर यहाँ पे आप अपने टावर से बहुत दूर हैं, तो आपको सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या मिलेगी? स्लो, कम मिलेगी। आपको बिट रेट भी कम मिलेगा, क्योंकि आप पैसे नहीं देते जी। तरबुजान वाला मसला है लाजमी तौर पे जी। नहीं नहीं, अगर माइट भी, फिर अगर आप इस पे जाना चाह रहे हैं, अगर जैसे आपने कहा कि भाई ये टावर है और मैं इसके बिल्कुल करीब हूँ फिर भी मुझे नहीं मिल रहा, तो फिर माइट भी कि इस टावर में जो फैसिलिटी है, अगर लेट करें वो 50 यूजर्स के लिए है, और कंपनी यहाँ पे 100 यूजर को चला रही है, यानी हाफ रेट पे काम कर रही है, तो लाजमी तौर पे आपको हाफ रेट मिलेगा। जी चला जाता है। जैसे इसकी, अब मुझे नहीं पता, क्योंकि ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये टेक्नोलॉजी का मसला नहीं है। गांव में, अब मिसाल के तौर पे, कल आप नहीं थे, लेकिन यहाँ पे अल्लाह करे आज ना जाए, 12 बजे बिजली चली गई थी, और तकरीबन तो 1:15 बजे तक मैं पढ़ाता रहा, तो नेटवर्क था, बिजली नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये जो बाहर हमारे एक्सेस रूटर लगे हैं, इनके पीछे जो स्विच है, उसके वो उसने बनाया ये नेटवर्क जो है इडियोरॉम, आपको शायद पता होगा। इडियोरॉम नेटवर्क जो है वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में प्रोजेक्ट था, और ये प्रोजेक्ट था हायर एजुकेशन कमीशन का, HEC का। अब उन्होंने तो हर इसके साथ, स्विच के साथ बैकअप रखा, यूपीएस रखा। आपको पता है यूपीएस के साथ बैटरीज होती हैं। एक तो ये होता है कि सरकारी चीजों का कोई केयर नहीं करता। घर में अगर किसी के लगा होता, तो अगर आल्दो के वो ड्राई बैटरीज थी, लेकिन फिर भी कुछ मेंटेनेंस मांगती हैं। और अगर ये एसिड बैटरीज हो, फिर तो ज्यादा मेंटेनेंस मांगती हैं। जिनके घरों में सोलर वगैरह है, उनको पता है कि वो अपनी बैटरी का कितना ख्याल करते हैं। यहाँ तो किसी ने ख्याल ही नहीं किया। जब ख्याल नहीं किया, तो चंद महीनों या चंद साल के बाद वो बैटरियां खत्म हो गई। तो इधर बिजली टक करके जाती थी, उधर नेटवर्क खत्म हो जाता था। तो इसका मतलब, और जो पिछले कुछ हफ्ता 10 दिन पहले, बिल्कुल इस हमारे जहाँ पे आप बैठे हुए इस वक्त, इसका ईडीरोम खराब था। तो मैंने कंप्लेन की अपने जो हमारे कंसर्न स्टाफ है, उन्होंने कहा जी हम तो इसको नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि ये मलकियत है HEC की, तो वो ही आके इसको ठीक करेंगे। शायद उन्होंने आगे बैटरियां चेंज भी साथ कर दी। तो कल इस वजह से 1.5 घंटे के बाद भी मेरे ही लैपटॉप से बैटरी खत्म हो गई थी। अदरवाइज शायद मैं 2 घंटा और भी कर सकता था। तो वहां पर भी जरूरी ये होता है कि आपको बैकअप देना होता है। अब जैसे मैंने अभी कहा कि शहर में तो शायद ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे हर एक टावर के साथ हजारों लोग बात कर रहे हैं और पैसे दे रहे हैं। वही बात है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रही है। गांव में आपने कहा वहां पे 20 लोग नहीं है जो इस्तेमाल करते हैं, और करते भी वो रहे हैं कि जो बस 100 रुपए, वो भी उन्होंने
सिर्फ सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कहते कार्ड बना आ जाओ, वो वहां से हमें कॉल आती है सिर्फ। तो फिर उनके लिए डेफिनेटली जब उनको पता चलता है कि यहाँ से कोई इन्वेस्टमेंट वो नहीं आ रही, रिटर्न नहीं आ रही, तो यू कैन एक्सपेक्ट। होना तो ये चाहिए कि अगर बैकअप है तो दोनों को करना है। बिजली है, बैकअप है, काम करेगा। जैसे जिन लोगों के घरों में ये केबल नेटवर्क है, आज हम किधर और घूम रहे हैं, टॉपिक से हटे हुए हैं, तो उनको भी पता है, लेकिन मैं आपके सवालों के जवाब क्योंकि वो नहीं करना चाहता कि आप कहें कि जी हमें सवालों के जवाब नहीं देना चाहता। तो ये जो केबल नेटवर्क आता है, ये भी जब बिजली चली जाती है तो आपका केबल टीवी तक करके बंद हो जाता है, क्योंकि उन्होंने घरों के पर लगाए होते हैं अपने बूस्टर्स, रिपीटर बूस्टर्स। उन बूस्टर्स को बिजली चाहिए होती है, वो बिजली जब बिजली इलाके की चली जाती है तो खत्म हो जाते हैं। तो वही बात है यहाँ पर भी। लेकिन अगर आप उनको क्योंकि आप देते भी 200 250 रुपए हैं, आप कहेंगे नहीं, हम माल इलाके के लोग जो है वो 2500 रुपए हर कोई देगा, तो वो लाजमी तौर पर उसके साथ फिर यूपीएस लगा देंगे। और आगे चलते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट, खामोशी है आपकी तरफ से। हसन, खतीजा, अरसलान, निमरा, शफक, हसनैन, कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से है? जी, शफक इज हेयर, तो बाकी दो किधर हैं? आप उसने तो मांगा कि जी हमें आज वो दे दिया जाए, और क्लास के लिए क्यों नहीं आए? एनी हाउ, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात कर रहे थे कि जनाब ये जो केबल है, इसके ऊपर कोई, और देखिए क्या ट्विस्टेड है, ये क्या है? ट्विस्टेड है, इसलिए इसको कहा गया ट्विस्टेड पेयर। हर पेयर को आप एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि जितना, और आप अभी इसकी कैटेगरीज के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि ये ट्विस्टिंग रिमूव करती है क्रॉस टॉक। मैं रिमूव तो लफ्ज बड़ा हार्ड है, रिमूव नहीं कहूंगा, रिड्यूस कहूंगा। तो जितना ट्विस्टिंग का लेंथ छोटा होता है, उतना ही क्रॉस टॉक की एलिमिनेशन इफेक्टिव होती है। लेकिन आप समझते हैं, मैं हमेशा ये एग्जांपल, कुछ ऑनलाइन में भी और फिजिकल में भी खवातीन हैं, उनको पता है कि जब वो अपने बाल वो खोल देती हैं तो लंबे होते हैं, लेकिन जब उन बालों को ट्विस्ट कर देती हैं तो फिर वो छोटे हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब इसकी भी आप ट्विस्टिंग करते हो केबल की, तो वो लेंथ कम हो जाता है। और जब कम हो जाता है तो आप तो ये नहीं कहते करते, आप तो कहते हैं कि जी मेजर करो, कि जी 1 मीटर है, 2 मीटर है, 3 मीटर है, उसके मुताबिक पैसे देते हैं, इसलिए इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। क्लियर हो गया? तो ये है जी। और यहाँ पे देखें शील्डिंग में से मैंने आपको कहा कि अगर आप समझते हैं कि आपके आसपास कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है, तो देन यू कैन यूज दिस इंटरनल शील्डिंग, एंड देन इट इज कॉल्ड एसटीपी, then it is called STP, and this is called UTP, unshielded twisted pair। क्लियर हो गया? उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने आपसे कहा कि जनाब 5, इसके बाद मेरा टॉपिक है, दैट इज द कोएक्सियल केबल। ठीक, कोएक्सियल केबल में का स्ट्रक्चर क्या होता है? आप ये देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं कि इसमें एक सेंट्रल कंडक्टर है, एक सेंट्रल कंडक्टर है, कॉपर। इसके ऊपर ये प्लास्टिक की इंसुलेशन, और इसके ऊपर फिर ये कॉपर का एक मैश है, कॉपर मैश है, और फिर ये प्रोटेक्शन, इंसुलेशन, इंसुलेशन है, प्रोटेक्शन। तो इस स्ट्रक्चर की वजह से इसमें दो एडवांटेजेस हैं विच इज ओवर दी ट्विस्टेड पेयर। एक तो ये है कि इस स्ट्रक्चर की वजह से फायर की आरएफआई या ईएमआई का
इफेक्ट कम हो जाता है, क्रॉस टॉक नहीं होता। और ज- चंद साल पहले तक इसका एडवांटेज ये था कि ये आपको क्योंकि लाजमी तौर पे बाद किस्म के नॉइज इसमें नहीं है, तो ये लंबे डिस्टेंस तक ले जाने की सलाहियत रखता था। मिसाल के तौर पे इसके दो वर्जन कंप्यूटर में, एक को कहते थे 10 बेस टी, सॉरी 10 बेस टी इज अनप्रिशनड पेयर। एक था, सॉरी जी, एक इसका था जो कि 10 बेस 2, 10 बेस 2 कहलाता था। ये 2 का मतलब ये था कि ये 200 मीटर तक बगैर किसी रिपीटर के काम कर सकता था। जैसे मैंने भी आपको कहा कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और मेरे डिपार्टमेंट के दरमियान में 100 मीटर से ज्यादा था, तो मुझे ये इतमाद था कि वहां से मैं ट्विस्टेड पेयर पे लाऊं तो काम नहीं करेगा और उल्टा मुझे बातें सुननी पड़ेंगी। तो मैंने कहा नहीं जी, इस पे ही नहीं चलेगा, इसलिए मैं नहीं करता। हाँ आप कहो तो मैं कर दूंगा, बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, खरीदो कोएक्सियल और डाल दो। अगर इससे भी ज्यादा होता तो एक और था 10 बेस 5, जो कि 500 मीटर तक बगैर उसके, और जब ये 200 मीटर तक जाए तो इसको कहते हैं थिन नेट। क्या कहते हैं? थिन नेट। और अगर 500 मीटर तक जाए तो इसको कहते हैं थिक नेट। क्लियर हो गया? और टेलीकम्युनिकेशन में जब फाइबर नहीं था, तो ये कोएक्सियल केबल टेलीफोन एक्सचेंज के दरमियान में ट्रंक के तौर पे इस्तेमाल होती थी। मिसाल के तौर पे एक, जैसे अभी हमने कहा कि ये एक्सचेंज हमारी, लेट करो खैबर रोड की एक्सचेंज है केबीआरडी, और ये कैंट की एक्सचेंज है। अब कैंट के भी बहुत से कस्टमर्स हैं, खैबर रोड के भी बहुत से कस्टमर हैं, तो लेकिन खैबर रोड के कई कस्टमर्स ने कैंट के कस्टमर से भी बात करनी है। तो इसके दरमियान में मे बी कि अगर यहाँ पे 10,000 कस्टमर हैं, यहाँ भी 10,000 कस्टमर हैं, हो सकता है 1,000 इधर के इधर से बात कर रहे हो, तो इन सब की बात को मल्टीप्लेक्स करके इकट्ठा करके इस ट्रंक के ऊपर भेज दिया जाता था। क्लियर? तो दैट इज योर कॉपर। कॉपर के दो फ्लेवर्स मैंने आपको बता दिए। तो यहाँ पे देखिए यही बता रहा है ट्विस्टेड पेयर के, कि 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। तो क्या कहता है जनाब, ये नंबर 1 क्या करता है? नंबर 1 इज द आउटर जैकेट। क्या करूं? जी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जब कोएक्सियल है हमारे पास है, तो फिर हम यूटीपी या एसटीपी क्यों इस्तेमाल करते हैं? मैंने कल एक लफ्ज इस्तेमाल किया था कि जो लोग भी, इंसानों में भी यही है कि जो कौमें या लोग या इंडिविजुअल्स अपनी ग्रोथ करते, अपने आप में तब्दीलियां लाते रहते हैं, वो सरवाइव करते रहते हैं। और जो नहीं करते वो मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ये इनिशियली दोनों 10 मेगाबिट पर सेकंड पे थे और फिर 100 मेगाबिट पर सेकंड पे थे। लेकिन ये 100 मेगाबिट पर सेकंड से इसे 10 गुना जंप लेके 1 गीग पे चला गया। 1 गीग से ये 10 गीग, 10 गुना और जंप, यानी 100 गुना जंप लेकर 10 गीग पे पहुंच गया। इसने ये काम नहीं किए, इसलिए इसकी कोई जगह नहीं। नहीं, सिंगल वायर तो ये भी सिंगल वायर ही है। एक ही यूजर के दरमियान में ये 4 पेयर काम करते हैं ना, वो अलग अलग तो नहीं करते। जैसे मैंने कल आपको दिखा रहा था कि पुराने जो एनआईसी कार्ड थे, उनमें दो इंटरफेसेस थी, इसके लिए भी थी, इसके लिए भी थी, और इसके लिए भी थी। तो वो नहीं है कि इसमें 4 है तो कोई फायदा है और इसमें एक है तो कोई नुकसान है, वो नहीं है। मसला ये है कि अब आपको ज्यादा स्पीड चाहिए, जो कि आपको इस कोएक्सियल ने नहीं थी, तो इसलिए कोएक्सियल बार हो गई। इसके अलावा कोएक्सियल केबल जो है, जहां पे अर्थ स्टेशन थे वहां पे इसका बड़ा इस्तेमाल था। जहां पे आपके एंटेना से रिसीवर पे या ट्रांसमीटर पे लाया जाता था, वहां भी ऑप्टिकल ये कोएक्सियल केबल इस्तेमाल होती थी। इसके अलावा बाज केसेस में जो टेलीफोन, जो लोग
ने कभी टेलीफोन नेटवर्क के अंदर काम किया हो, तो बाद इंटरनल इक्विपमेंट को भी ज्वाइन करना होता था, वहां भी कोएक्सियल इस्तेमाल होती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वहां से भी कोएक्सियल केबल रिप्लेस होकर ऑप्टिकल फाइबर से रिप्लेस हो गई। ये पैच केबल्स जो मैंने आपको दिखाई, कल दिखाई थी, यही पैच केबल्स के जरिए आप मुख्तलिफ इक्विपमेंट को आपस में कनेक्ट करते हैं। कोएक्सियल से किया। उस वक्त मैंने कहा दोनों ही 100 मेगाबिट पर सेकंड पे थे, तो मुझे कोई इससे डर नहीं था कि वो भी 100 देता है, ये भी 100 देता है। ये 100 मीटर तक जाता है, वो 200 मीटर तक जाता है। और ये डिस्टेंस जो है ये 200 मीटर से कम है, लेकिन 100 से ज्यादा है। आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, सीधा सीधा तो कम है, सीधा सीधा नहीं ला सकता था, लाइन तो मुझे दीवारों पे इसको लाना था। अगर यूं खींच के लाता तो मौसम हवा अल्लाह गुल्ला से कि 4 दिन में टूटा होता। तो लाजमी तौर पे इसको दीवारों के साथ साइडों से ला ला के यहाँ पहुंचाना था। जब वो चेक किया तो ये 100 मीटर से ज्यादा बनता था। इसलिए मैंने ये प्रपोज किया था, और ये कई साल चलता रहा था। इतना चलता रहा था कि हम भी फौजियों की तरह ही हैं कि जब मैं वापस छोड़ के चला गया इस डिपार्टमेंट को, वापस आ गया कई साल के बाद, देखी तो वो केबल फिर भी वहां पड़ी हुई थी। मैंने कहा किस लिए रखी हुई है? कहते हैं जी पता नहीं है। तो मैंने कहा उतार दी, मैं ही लगाई थी, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। फौजियों को इसलिए कहा कि हमारे एक वदूद साहब होते थे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में, वो एयरफोर्स से आए थे। एयरफोर्स से रिटायरमेंट के बाद एयरफोर्स आर्मी से लोग आते हैं। तो वो कहते हैं कि जी एक जगह पे वो काम करते थे, और वहां पे एक फौज के अंदर, कैंप के अंदर या जो भी यू है, वहां पे एक लॉन बन रहा था। तो एक कैप्टन साहब ने एक बंदे को वहां खड़ा कर दिया कि बच्चे आके मतलब खराब करेंगे, तो अभी नया ग्रास लगा है इसको, तो फौजी को बाहर खड़ा कर दिया। कहते हैं कि वो कैप्टन साहब मेजर सॉरी कर्नल बन के वापस आए, उसी जगह पे उनकी दोबारा वो लगी। तो देखते हैं वहां फिर भी एक बंदा खड़ा है। उसने कहा यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा पता नहीं, वहां पहले यूनिट वाले भी यहाँ बंदा खड़े करते हैं, इन्होंने भी खड़ा किया और मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। उसने कहा साला मैंने इस पर्पज के लिए खड़ा किया था, वो तो खत्म हो गया, लॉन बन गया, सब कुछ ठीक हो गया, यहाँ अब जरूरत नहीं है। एनीहाउ, तो हम बात कर रहे थे कि फर्स्ट वन का क्या काम है? जस्ट प्रोटेक्शन, फिजिकल डैमेज से बचाना। फिर उसके अंदर क्या है? ये पेयर्स। पेयर्स क्या है? प्रोटेक्ट्स, जो बाहर उसके ऊपर वो है, कल दिखाया था कि नहीं देखा? नहीं आप ना लाइन, मुझे दो तीन चाहिए दिखा। लेकिन वो ढूंढना, मैंने आज भी कल भी आपको कहा था, वो हमारा स्ट्रिपर गायब हुआ हुआ है। नहीं है तो मार्केट से खरीदा जाए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो आपको नजर आ रहा है इस वक्त स्क्रीन पे, इसको कहते हैं क्रैम्प। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, इसको कहते हैं क्रैम्पिंग टूल। इस क्रैम्पिंग टूल को मैं आपके सामने इसलिए साथ साथ बता रहा हूँ कि ये चीजें अब आपने यूज करनी है, तो एटलीस्ट आपको नाम और इनकी शक्ल वगैरह पता हो। तो जनाब, ये है क्रैम्पिंग टूल। इस क्रैम्पिंग टूल का एक काम तो ये है कि इस केबल को अगर इसको काटना हो तो तब ये काटने में भी मदद, एक वो दे दो कटर। तो इसको मैं केबल को काटता हूँ, और इसके अंदर आपको ये जो कुछ आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, वही चीज आपको इसमें भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको ये ना हो कि नहीं जी ये तो एक फिगर थी, ये लेकिन असल में तो ऐसा नहीं होता होगा। तो अरसलान ये ना कह सके, हामिद ये ना कह सके, और खतीजा भी ना कह सके। ठीक है खतीजा? खतीजा तो ऐसे भी कुछ नहीं कहती, कुछ भी ना दिखाऊं तब भी कहेगी सब ठीक है। क्यों खतीजा? इंजीनियर खतीजा मलिक। लेकिन मेरे ख्याल से निमरा ने बताया था कि यू आर नॉट फ्रॉम पिशावर, एम आई राइट? वरना आपको मजबूर करें कि आप क्लास के लिए, फिजिक्स क्लास के लिए आओ, कि तुम्हारा ये डर खौफ खत्म किया जाए। कहाँ से हैं आप?
राइट। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है आपके सामने कटर, और इस कटर से मैं इसको कट कर देता हूं ताकि ये आपको आपके सामने देखिए ये कट हो, ये देखें कट हो गया। अब इसके ऊपर से मैं ये जैकेट रिमूव करता हूं। तो इसके लिए इससे भी कर सकता हूँ क्रैपिंग टूल से, और इसके लिए हमारे पास एक स्ट्रिपर भी होता है कि स्ट्रिपर इस पर रख के हम खींच देते हैं। वो स्ट्रिपर मैं देखूंगा अंदर पड़ा हुआ था, अब नहीं है, नहीं मिला। ओके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन आसान है, इसके ऊपर इसको रखें और इसको हल्का, इसको यूं मूव करें। मूव किया तो हटा दें और इसको आराम से, अरे वो भी फंस गया था। जी ये आप देखें, तो आप ये देख सकते हैं कि जिस तरह आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वैसे ही आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिए कि इसके अंदर चार ये पेयर है। एक ये आपको ग्रीन और ग्रीन के साथ व्हाइट ऑफ ग्रीन, एक आपको ऑरेंज और व्हाइट ऑफ ऑरेंज, एक आपको ब्लू व्हाइट ऑफ ब्लू, और एक आपको ब्राउन व्हाइट ऑफ ब्राउन नजर आ रहा है। लाजमी तौर पे हर एक सर्किट में दो एक पेयर होता है। आपके इस वायर में भी एक पेयर आया हुआ है, तो यहाँ भी चार पेयर। क्लियर हो गया? लेकिन आपने देखा कि इसके अंदर कोई और, इस प्रोटेक्शन और इसके दरमियान में कोई और कुछ नहीं है। इसका मतलब ये अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ये अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। क्लियर हो गया? ओके। तो जेंटलमैन, हम बात ये कर रहे थे हम बात ये कर रहे थे कि हमारे स्टूडेंट ने इस पे लकीरें लगा दी। ओके नाइस। तो जावल ने बहुत लेट हमें ज्वाइन किया। ओके। तो सबसे पहली चीज हमने कही कि वो क्या है, वो है आउटर ये प्रोटेक्शन, ये आउटर ब्लू कलर की प्रोटेक्शन। फिर इसके अंदर क्या है, पेयर्स, और पेयर के ऊपर भी इंसुलेशन है। तो ट्विस्टेड पेयर प्रोटेक्ट द सिग्नल फ्रॉम इंटरफेरेंस। और फिर इसके अंदर क्या है, कलर कोडेड प्लास्टिक इंसुलेशन, कलर कोडेड, एक ब्राउन ग्रीन ब्लू ब्राउन, चार कलर। तो ये कह रहा है कि कलर कोडेड प्लास्टिक इंसुलेशन इलेक्ट्रिकली आइसोलेट द वायर्स फ्रॉम ईच अदर एंड आइडेंटिफाई ईच पेयर। क्लियर हो गया एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? इसके मुकाबले में आपकी एसटीपी में क्या है, फर्क क्या है कि इसमें एक लेयर की भी प्रोटेक्शन हो सकती है और दो लेयर की भी प्रोटेक्शन हो सकती है। जैसे यहाँ पे देखिए वन उसी तरह है आउटर जैकेट, अब अंदर एक भी हो सकती है, यहाँ पे डबल की गई है, एक ये प्रोटेक्शन टू, और फिर हर पेयर को प्रोटेक्शन की गई है। तो जितनी ज्यादा प्रोटेक्शन उतनी ज्यादा कास्ट, डिपेंड करता है अब आपकी, क्योंकि मैंने आपको बार बार कहता हूं कि इंजीनियरिंग टेक्निकल के साथ साथ इकोनॉमिक्स भी है। मिसाल के तौर पे हर कोई अपने लिए क्यों नहीं हेलीकॉप्टर ले लेता, क्योंकि हेलीकॉप्टर इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है। तो इस वजह से हेलीकॉप्टर किसी के पास भी नहीं है। तो यहां पर भी जितनी प्रोटेक्शन, नंबर टू, ब्रेडेड और फॉयल शील्ड प्रोवाइड्स
EMI प्रोटेक्शन। फिर उसके बाद फॉइल शीट फॉर ईच पेयर, अगेन प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द EMI एंड RFI एक्सटर्नल। और फिर उसके अंदर उसी तरह कलर कोडेड प्लास्टिक इंसुलेशन विच कैरीज योर सिग्नल। बात समझ आ गई? महंगा अभी कहा कि आप ये मुझे, जैसे आप कहें कि जी ज्यादातर लोग यहाँ पे टोयोटा इस्तेमाल करते हैं, किसी के पास भी कोबरा नहीं है। तो कोबरा क्यों नहीं है? महंगा है। तो इसलिए ये महंगा है। लाजमी तौर पे जब एक एक्स्ट्रा शील्ड, एक्स्ट्रा चीज उसमें दी जाएगी, दो चीजें हैं। एक तो उसका साइज भी थोड़ा सा मामूली सा बड़ा हो जाता है। तो अगर आपको इस डक्ट में ये 10 केबलें जाती हैं तो वो 8 जाएंगी, तो इसका मतलब आपको एक और डक्ट लगानी पड़ेगी, तो खर्चा ज्यादा होगा। तो इफ यू कैन बेयर द खर्चा, नो प्रॉब्लम। जितना ये करती है काम उतना ही वो करेगी, क्योंकि एक्सटर्नल जो आपका जो चीज बचाने की है, लॉन्ग लास्टिंग में जो नुकसान है वो है इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंट के लिए ये चीज काफी है। और ये तार भी आपने मोस्टली डक्ट्स में डाली होती है, तो नुकसान कहाँ पे है? नो खतरा। क्यों खर्चा करूं? लेकिन अगर आपका दिल चाहे कि नहीं, पैसे दे रही, बिल्कुल करो, नो बडी स्टॉप जी। जी, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। हाँ, अगर आप एक ही डक्ट में गुजारते हैं तो इसलिए कहा जाता है कि उसकी भी, जैसे भी हमने बात की कि वहां पे 50 या 60 हर्ट्ज का एक सिग्नल है। आल्दो के इसमें 50-60 का नहीं है, तो इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन इसलिए किया जाता है कि वो नॉर्मली शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस उनके ज्यादा होते हैं। तो शॉर्ट सर्किट हो जाए तो आग लग जाएगी, आग लगेगी तो साथ ये भी जाया होगा। इसलिए कहा जाता है इसको अलग रखो। क्योंकि इसमें कभी भी नहीं सुना कभी भी आपने कि शॉर्ट सर्किट हो गया और बिल्डिंग में आग लग गई, तो इसलिए अलग रख दें। नहीं, ये वो दोनों की फ्रीक्वेंसी, ये ले जाता है वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज पे, वो 50 से 60 हर्ट्ज पे है, नो प्रॉब्लम। हाँ, उस केस में मसला आएगा जबकि पावर लाइन कम्युनिकेशन पे आप जाओगे, तो आप उसी वायर में हाई भी ले जाओ, फिर एक ही वायर में हाई भी ले जाओगे और लो भी ले जाओगे, तो इसका मतलब कोई मसला नहीं है, एक दूसरे का इंटरफेयर नहीं करते। तो इंटरफेरेंस नहीं है, वो अनसिक्योर है। और हम बदकिस्मती से लो क्वालिटी और चीप चीजें खरीदने में माहिर है। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ सोलर बहुत ज्यादा लग रहे हैं, बड़ी अच्छी बात, ग्रीन है। लेकिन जो वायर इस्तेमाल की जाती है, ये ज्यादातर जो वायर, क्योंकि आप खुद तो नहीं करते ना, आपने तो किसी का हवाले किया होता है कि जी आओ ये काम कर दो, तो वो केबल उसमें लगाता है जो कि आ, इस्तेमाल होती है बोर में। बोरिंग में भी एक वायर आती है ना, वायर, वो वायर इस्तेमाल करता है। अब वो इस डीसी, वो एसी के लिए है। और ये जो आ रहा है डीसी है, डीसी बड़ी खतरनाक है, एसी खतरनाक नहीं है। ये तार यहाँ पे काम नहीं करती। इसकी अपनी तार अगर खरीदो तो काफी महंगी है। पर मीटर मुझे अब याद नहीं है, कुछ 400 रुपए के पता नहीं कितने रुपए पर मीटर है। वो नहीं, वो तो 400 रुपए की 10 मीटर वो मिल जाती है दूसरी, तो वो आप लोगों को लगा देते हैं, काम तो चल जाता है। लेकिन जब आग लगती है तो फिर कोई, और इवन मैंने ये भी देखा कारखानों में, क्योंकि मैंने जब अपने घर पे लगाई तो मैंने 4 mm की लगाई। मेरे दो कजन ने 6 mm की खरीदी आ, यहाँ से, और मुझे आगे कहता है देखो तुमने महंगी ली और मैंने अच्छी ली, 6 mm की भी ली और फिर भी सस्ती है। तो मैं उस बंदे, मेरा दोस्त है, उसके पास लेके उसने दोनों खोली, कहता है देखो ये 6 mm है, ये 4 mm है, 4 mm मुझसे ज्यादा मोटी थी। तो झूठ बोलते हैं, मुनाफिक हैं। नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ जो 6 mm कमजोर थी और 4 mm बेहतर थी उससे। लेकिन उसका कॉस्ट वाइज मैंने महंगी ली थी, क्योंकि मुझे पता है कि डीसी कितनी खतरनाक है। और आ, उसके लिए आप नहीं खर्चा करते, तो इसलिए आप अलग रखते हैं कि आपका जो एसी और डीसी के ये हैं, इनको अलग रखो।
इसके साथ मत करो क्योंकि ये भी इसको भी खराब करेगा। ठीक होगी। कॉन्ट्रिक ये तो कभी पॉजिटिव है, कभी जीरो है, कभी ये फ्लक्चुएट करती है। और डीसी तो कंजक्टिव रहती है एट ए सर्टन लेवल, तो उसके साथ गड़बड़ बर्दाश्त नहीं होती। दो तो अच्छी बात है। नहीं मतलब लाजमी तौर पे ना दो का मतलब ये है कि आप एक डेंजर खरीद रहे हो। अगर आप समझते हो कि बड़ी बिल्डिंग है, आप उसमें लगा रहे हो, तो मस्ट है कि आप उसको अर्थ दो। इसीलिए देते हैं कि अगर कोई नुकसान हो, उसके ब्रेकर्स बड़े महंगे हैं, आप एसी के ब्रेकर लो और डीसी के लो, डबल राइट है उसका। किसी के बारे में अवेयरनेस भी नहीं है। आपने कहा आपने अर्थ नहीं इस्तेमाल की तो रिसेट हो जाता। माइट भी उसकी जो वोल्टेज है, पहले पहले तो ये कि बाज इक्विपमेंट अगर मिसाल के तौर पर ये पंखा एसी का है तो डीसी पे चल नहीं सकता। तो उसको आपने लाजमी तौर पे इसलिए दरम्यान में आप इन्वर्टर लगाते हैं कि वो इट कन्वर्ट इनटू डीसी एसी एंड गिव इट फर्दर। और फिर ये भी होता है कि आपकी जो वोल्टेज आपकी रिक्वायरमेंट है उससे कहीं ज्यादा तो नहीं है। बाज वक्त वो इससे थोड़ा ऊपर रख देते हैं, इक्विपमेंट खराब होता है उससे। तो क्योंकि हमारे यहाँ पे तो बस ये होता है कि 6 महीने किसी के साथ काम करो, उसके बाद अपनी दुकान खोलो और बिजनेस स्टार्ट हो गया। टेक्निकली साउंड तो नहीं होते ना। नहीं आओ, आगे चलते हैं जी। तो ये है आपकी। जी, एनीवन फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट्स, डू यू वांट टू से समथिंग? नो। ओके। तो कोएक्सियल, तो मैंने पहले बताया कि जी इसका इंटरनल कंडक्टर एक इंटरनल कंडक्टर कॉपर का, और ये कॉपर का ब्रैड मैश, और ये दोनों ये इंसुलेशन इन दोनों के दरमियान में, और ये प्रोटेक्शन के लिए वन। तो ये यहाँ पे देख लो, आउटर जैकेट टू प्रिवेंट माइनर फिजिकल डैमेजेस, प्रोटेक्शन। उसी तरह ए कॉपर ब्रेड और मेटालिक फॉयल एक्ट एज ए सेकेंड वायर, क्योंकि ऑलवेज दो वायर चाहिए होती हैं, इसलिए एक कॉपर की ये काम करेगी और एक कॉपर की ये काम करेगी। तो कहता है वोवन, ए वोवन copper braid or metallic disc act as a second wire in the circuit and as a shield for the inner conductor. फिर उसके बाद क्या है? A layer of flexible plastic insulation here, and finally a copper conductor is used to transmit the electronics or electrical signal. फिर क्या क्या है जी इसके लिए? दे कॉमनली यूज, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टर्स। तो ये जो आपको कनेक्टर नजर आ रही हैं, आप घरों में भी इस्तेमाल करते रही हैं। और अगर आपके टीवी या वो हैं, या आपने बाज घरों में शायद अभी भी हो, सैटेलाइट टीवी उन्होंने रखे होते हैं, तो आप अपने एंटेना से, डिश एंटेना से कॉपर के इसके जरिए कोएक्सियल के जरिए लाते हैं, और दोनों एंड के ऊपर कनेक्टर्स होते हैं। एक वक्त में उनका भी जमाना था वीसीआर का, उसमें भी एक कोएक्सियल केबल होती थी जो कि आपके टीवी और आपके उसको ज्वाइन करती थी। क्लियर हो गया जी? अब हम आ जाते हैं जनाब, प्योरली यूटीपी की बात करते हैं। तो अभी मैंने आपको यूटीपी बताई। नहीं वो तो मेरे ख्याल से शायद, मुझे नहीं पता कि आपका किस उससे बात कर रहे हैं। कोएक्सियल केबल में ये इशू ये जो दरमियानी कंडक्टर होता है, ये दरमियानी कंडक्टर ये वाइट कलर का होता है, और अगर मे बी वो एक्सपायर्ड है और वट एवर, कि उसने अपनी जान छोड़ दी हुई है, ये जो प्लास्टिक की इंसुलेशन है, तफक अपना माइक बंद करो, इंसुलेशन है, तो तब जाके ये मसला दे सकते हैं, बाकी किसी पाउडर की जरूरत नहीं है। ठीक। तो जनाब क्या हम कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अबाउट दी, जैसे मैंने पहले कहा कि इस, अभी आपको दिखाया भी, स्क्रीन पे भी आपको इस वक्त नजर आ रहा है कि चार पेयर्स, जैसे आपको दोनों एंड के ऊपर दिखा रहा हूं कि यहाँ भी आपको चार पेयर नजर आ रही हैं और यहाँ भी आपको चार पेयर नजर आ रहे हैं।
तो एग्जैक्टली द सेम, एग्जैक्टली दी सेम। ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, कहता है कि जी यूटीपी हैज 4 पेयर्स कलर कोडेड कॉपर वायर्स ट्विस्टेड टुगेदर एंड इनकेस्ड in फ्लेक्सिबल प्लास्टिक शील्ड। ये प्लास्टिक शील्ड नजर आ रही है ना, प्लास्टिक शील्ड। नो शील्डिंग इज यूज्ड। यूटीपी में कोई शील्डिंग नहीं होती, क्योंकि हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे एक्सटर्नल आरएफआई या ईएमआई नहीं है। जैसे मिसाल तो पे ये लगा हुआ है सब कुछ, तो यहाँ कौन सा आरएफआई है कि ईएमआई है कि मैं इससे डरूं। ओके। यूटीपी रिलाइज ऑन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज टू लिमिट क्रॉस टॉक। पहले तो ये बताऊं क्रॉस टॉक है क्या, क्योंकि लिमिट तो उस वक्त करेंगे जब हमें पता हो कि क्रॉस टॉक कहते हैं किसी। तो जेंटलमैन, अगर ये पेयर नंबर 1 है, ये पेयर नंबर 1 है, इसको मैं रेड और इसके ऊपर ये येलो लगा लेता हूं, ये एक पेयर है। इसी तरह एक ग्रीन है, ये दूसरा पेयर है। और इसके बल्कि इसको भी थोड़ा सा करली बना लिया जाए तो नॉट बैड, यू। और इसके साथ हम एक ब्लू वाले को कर लेते हैं लाइक दिस। तो ये 2 पेयर हो गए। अब अगर इस पेयर में कोई भी अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग सिग्नल, अगर इसमें कोई अल्टरनेटिंग तो समझते हैं ना, अल्टरनेटिंग करंट मूव कर रही है, तो आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि इसके गिर्द एक इसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड स्टैब्लिश होगी। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाजमी तौर पे इसको अफेक्ट करेगी। इसका मतलब है कि आप ये भी एज्यूम कर सकते हैं कि आप किसी ट्रांसफार्मर आपने पड़ा हुआ है अपनी किसी भी लेवल के ऊपर, तो अगर ये प्राइमरी है तो ये सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी में एक वोल्टेज इंड्यूस होगी, जो कि इसमें से जो वोल्टेज गुजर रही है अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये दोनों वोल्टेजेस एक दूसरे को लाजमी तौर पे अफेक्ट करेंगी। इस अमल को कहते हैं क्रॉस टॉक। इसकी एग्जांपल जैसे मैंने आपको पहले भी दी कि एग्जांपल इसकी है कि जब आप पीटीसीएल के कस्टमर थे, शायद अब भी हो, बहुत से लोग हैं, तो और वो अभी भी कॉपर पे हैं बदकिस्मती से। ये नहीं कि उनको पता नहीं था, मैं नहीं मानता, क्योंकि व्हेन आई वाज इन 2000 इन हेडक्वार्टर, पीटीसीएल हेडक्वार्टर, उस वक्त वो इस पे काम कर रहे थे कि जनाब हमें एज क्विकली एज पॉसिबल बड़े शहरों को पहले हम इस पे ले आए। और वो बड़े खुश थे कि जी हमने इस्लामाबाद को कर लिया। भाई इस्लामाबाद को करना इज नॉट अ बिग अचीवमेंट, क्योंकि इस्लामाबाद में रहने वाले तो बड़े बड़े लोग हैं लेकिन पॉपुलेशन कम है। वहां पे आपने मेजर चंक ऑफ दी पॉपुलेशन को कवर नहीं किया। आपने सिर्फ मिसाल के तौर पे कर्नल साहब को, ब्रिगेडियर साहब को, सेक्रेटरी साहब को खुश कर दिया कि जी पीटीसीएल जबरदस्त। आपने जनरल पब्लिक को करना था तो आप पिशावर को करते, लाहौर को करते, कराची को करते, कोयटा को करते, फैसलाबाद को करते, मुल्तान को करते। तो इन्होंने डिले किया, दूसरों ने कर लिया, क्योंकि इनको सबसे बड़ा, मुझे भी था, यानी कि उनको था सिर्फ, मुझे भी ये जरूर था कि जनाब जितनी कॉपर हमने जमीन में डाली हुई है, ये इनका बाप भी नहीं डाल सकता। इसमें इतना खर्चा आता है, इसमें इतना एफर्ट होता है कि ये नहीं डाल सकते। जब ये नहीं डाल सकते तो सिर्फ ये हमारा मुकाबला करेंगे लॉन्ग डिस्टेंस में। बाकी एक्सेस नेटवर्क में डरो मत, कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने कर दिखाया। ठीक है क्या नहीं जी, हम लॉन्ग डिस्टेंस में भी आपका मुकाबला कर रहे हैं, करेंगे करेंगे करें कर रहे हैं। जैसे मेरे वतीन है, तब आगे कर रहा है लॉन्ग डिस्टेंस में मुकाबला। मोबलिंक है, तब आगे कर रहा है मुकाबला लॉन्ग डिस्टेंस में। तो वहां भी हमने मार खाई और एक्सेस नेटवर्क भी हमने लूज कर दिया। तो एनी हाउ जो भी है वो तो एक पॉलिटिकल या नालायकियत है, उस पर हम बात नहीं करते। तो हम बात ही कर रहे हैं जेंटलमैन के, हाँ हम बात ही कर रहे हैं कि आपने देखा होगा, चले अगर अब नहीं भी है तो 10 साल पहले जब पीटीसीएल का था,
तो स्पेशली जब बारिश होती थी तो आप अपने हमसाए की बातें भी सुन रहे होते थे, या फोन उठाते थे तो साथ उसकी आवाजें आपको आ रही होती थी कि वो किसी से बात कर रहा है या कर रही है। तो क्या हो रहा होता था, ये हो रहा होता कि आपका सिग्नल, उसका सिग्नल जा रहा है, बात कर रहे हैं, तो वो एक अल्टरनेटिंग सिग्नल है, वो एक ईएमएफ जनरेट करता है, इंड्यूस करता है मेरे मेरे पेयर में, और ये पेयर मेरे घर के टेलीफोन पे आगे कनेक्टेड है, तो मुझे उसकी आवाजें आना शुरू हो जाती थी। तो इसको कहते थे क्रॉस टॉक। अब आप कहेंगे कि ये बारिश के साथ क्या मसला है? लामी, तो भाई बारिश का मसला ये है कि इनके दरमियान फिर हम अगेन सरकारी थे, करप्ट थे, तो जितनी डेप्थ के ऊपर ये केबल डालनी चाहिए थी, जो कि तकरीबन 3 फीट है, तो 3 फीट इस केबल को नीचे और फिर इसको एक मखसूस ईंटों के साथ वो करके तो बंद किया जाए। लेकिन हमारे यहाँ तो ये आप नाली के साइड पे पड़ी होती हैं, तो वो पानी जब इसके अंदर चला जाता है तो आपको पता है कि पानी इज ए कंडक्टर। तो इसका मतलब है कि वो इसके दरमियान में सिग्नल की, जब पानी आ जाता था तो इसके दरमियान में पानी का जो भाप अंदर चला जाता था केबल के अंदर, तो वो इनके दरमियान में कंडक्टर का काम करता था। तो फिर एक पेयर से दूसरे पेयर तक आसानी से सिग्नल पहुंच जाता था। यार, फिर जब बारिश खत्म, धूप आ जाती थी, पानी सूख जाता था, मसला हल हो जाता था। मगर ये समझ आ गया कि क्रॉस टॉक किसे कहते हैं। ठीक है, अब इसका इसका हमारा मसला ये है कि किस तरह इसका स्टॉक को खत्म किया जाए, या खत्म तो मैंने पहले कहा नहीं कर सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम रिड्यूस जरूर कर सकते हैं। तो इसको रिड्यूस करने का ये है कि जितना आप ज्यादा ये टर्न्स दें, यानी कि टर्न लेंथ छोटे से छोटा कर दें, तो क्या होगा कि एक पेयर, और आपको ये भी पता है अगेन फरेडे का हमें वो है। और अगर मैं ये माइनस का आपसे पूछूं कि अगर फरेडे ने ये माइनस क्यों लगाया था, तो अतीश जवाब देगा किसके के अकॉर्डिंग। और लेंस लॉ ये कहता है कि पाकिस्तानियों में और लेंस लॉ में कोई कोई फर्क नहीं है, कि जो हमें जो मुल्क हमें दे रहा होता है, हम उसी की जड़ें काटते हैं। तो इसी तरह लेंस लॉ ये कहता है कि अगर मिसाल के तौर पे, अगर जो वोल्टेज आप इसको दे रहे हैं, मिसाल के तौर पे करंट का डायरेक्शन ये है, इसका मतलब है कि लाजमी तौर पे ये हाई पोटेंशियल पे है और ये लो पोटेंशियल पे है। जब ये ईएमएफ इंड्यूस करता है तो इसका डायरेक्शन ये प्लस है, तो ये माइनस, ये अपोजिट, ये माइनस है तो प्लस अपोजिट, और डायरेक्शन ऑफ द करंट जो होगा वो इसके अपोजिट होगा। ये नेगेटिव साइन ये शो करता है। ये हमें फिजिक्स के लेंस लॉ ने बताया था। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है जेंटलमैन, कि अगर ये पेयर छोटे छोटे टर्म्स हैं, लाइक और अपोजिट डायरेक्शन में है, लाइक दिस, तो अगर इसने एक ईएमएफ इंड्यूस किया लाइक दिस, तो ये कैसा करेगा, इसके अपोजिट करेगा, क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट है। तो डायरेक्शन डिफरेंट, एक दूसरे को ये क्या कर देंगे, मिनिमाइज, कैंसल आउट कर देंगे। तो यूं आपका, जितना आप देखें, इसी बेस के ऊपर ये आगे इस पे बात भी करेंगे कि इसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। कहते हैं जी कैटेगरी 3 है, ये कैटेगरी 5 है, ये कैटेगरी 5E है। और मुझे नहीं पता कि आशीष क्या बताता है कि ये कौन सी कैटेगरी है, इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो ये हमें बताया कि जी ये कैटेगरी, आशीष ने पढ़ के इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये कैटेगरी 6 है। तो जितनी जितनी कैटेगरी इंक्रीज होती जाती है, दो चीजें इंप्रूव होती हैं। एक, मोर टर्म्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट लेंथ, सॉरी, पर यूनिट लेंथ। और नंबर 2, प्यूरिटी ऑफ द कॉपर, प्यूरिटी ऑफ द कॉपर। तो जितनी जितनी प्योरिटी ऑफ कॉपर आपको पता है कि बढ़ती है, रेजिस्टेंस कम होती है। जब रेजिस्टेंस कम होती है तो सिग्नल ज्यादा उससे गुजर सकता है, या उसकी स्ट्रेंथ की जल्दी कम, एटेन्यूएशन की कम नहीं होती। तो यही बात हमें बताई जा रही है कि ईच पेयर इन द वायर ऑफ पेयर ऑफ वायर यूजेस opposite polarity. One wire is negative, the other is positive. They are twisted together, and the magnetic field effectively cancel each other. And the outside, याद रखो कि ये जो ट्विस्टिंग जो है
ये इफेक्टिवली रिड्यूस करती है क्रॉसटॉक को, लेकिन ईएफआई आरएमआई को नहीं करती, उसके लिए आपको शील्डिंग करनी पड़ती है। ठीक है। फिर वेरिएशन इन ट्विस्ट पर फुट और पर मीटर ऑफ ईच वायर इज ट्विस्टेड इन डिफरेंट अमाउंट विच हेल्प्स प्रिवेंट क्रॉसटॉक फ्रॉम अमंग द वायर्स इन दी केबल। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद ये टॉपिक सिर्फ बता रहा हूं। ओके, नहीं अब अभी बताता हूं जनाब। ये केबल आप तीन तरह से बना सकते हैं। एक के बारे में हम बात नहीं करेंगे, और वो केबल आपने देखी हुई है, एंड दैट केबल इज, नहीं, क्रॉस जो आपने उसमें इस्तेमाल की थी, कंसोल केबल। तो कंसोल केबल जिसको रोल ओवर केबल भी कहते हैं, वो प्रोप्राइटरी है। लेकिन ये जो दो बाकी केबल हैं, स्ट्रेट थ्रू और क्रॉस ओवर, ये आप बनाते हैं, ये आपने बनानी है। मेरी बात समझ आ गई? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं आपके साथ इस चीज को डिस्कस कर लूं तो दैट विल बी नाइस। जनाब, हम देखना क्या चाह रहे हैं इस वक्त? हम देखना चाह रहे हैं कि किस तरह स्ट्रेट केबल और क्रॉस केबल बनती है। तो जेंटलमैन, जी, तो बनती ये कुछ यूं है कि, हाँ, ये देखिए कनेक्टर। किसका कनेक्टर? टी कनेक्टर, कोएक्सियल में। ठीक। इसमें ये वायरलेस है, क्योंकि यहाँ पे एंटेना दिखाया जा रहा है। ये आपके राउटर्स, और ये आपकी एएसए। एएसए क्या होता है? एएसए, इरफान सर? फायरवॉल। एएसए क्या है? फायरवॉल। नहीं, एडेप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंस। एएसए स्टैंड्स फॉर एडेप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंस, बेसिकली इट इज ए फायरवॉल। ये क्या है? स्विच तो ये है ना, पैच पैनल। ये ऊपर लगा हुआ है पैच पैनल। ठीक है जनाब, अब आते हैं हम आपके इस टॉपिक की तरफ कि किस तरह हम ये केबल बनाएंगे। ठीक है ना, ये हमारा टॉपिक है। तो इसके लिए
जी, ये आपको बताना मकसद है। अब जहां पे ये ग्रीन और साथ टूटा हुआ है, इसका मतलब दिस इज व्हाइट, व्हाइट ऑफ ग्रीन। अगर आप ये वाला पैटर्न इस्तेमाल करते हैं एक एंड पे, और यही पैटर्न इस्तेमाल करते हैं दूसरे एंड पे भी, ये सेम पैटर्न, चाहे वो मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड का नाम क्या है, EIA TIA 586A, और क्या कहते हैं 586B। तो अगर आप दोनों एंड पे लेडीज एंड जेंटलमैन, दोनों एंड पे ए या दोनों एंड पे बी इस्तेमाल करें, तो इस केबल को कहा जाएगा स्ट्रेट केबल। इस केबल को कहा जाएगा स्ट्रेट केबल। यानी कि पहले आप, मिसाल के तौर पे ये केबल है आपके सामने, तो आप पहले ग्रीन को पकड़े। ग्रीन को पकड़ने के लिए ये मैंने ग्रीन को पकड़ लिया, ये ग्रीन पकड़ी गई, आपको नजर आ रहा है, ये देखें जी, ग्रीन और व्हाइट ऑफ ग्रीन। तो कहता है पहले ग्रीन को सेट, व्हाइट ऑफ ग्रीन को सेट करो। ये देखें जी, व्हाइट ऑफ ग्रीन, ये व्हाइट ऑफ ग्रीन आ गई, ये व्हाइट ऑफ ग्रीन। देखिए इसके ऊपर थोड़े थोड़े दाग हैं व्हाइट के, सॉरी ग्रीन के। है तो ये व्हाइट, लेकिन इस पे दाग आपको क्लियरली नजर आ रहे हैं किसके, ग्रीन के। फिर इसके बाद आपने व्हाइट ऑफ ग्रीन के बाद ग्रीन को सेट करना है, ये ग्रीन को फिर सेट करें। फिर इसी तरह व्हाइट ऑफ ब्राउन को सेट करें, फिर ब्लू को, फिर व्हाइट ऑफ ब्लू, फिर ऑरेंज, फिर व्हाइट ऑफ ब्राउन, और फिर ब्राउन। तो अगर एक एंड पे आपने ये किया है, एक एंड पे ये किया है, तो दूसरे एंड पे भी यही करेंगे, तो इट विल बी कॉल्ड ए स्ट्रेट केबल। अगर आप एक एंड के ऊपर बी लेते हैं और दूसरे एंड पे भी बी लेते हैं, जैसे मैंने यहां बताया, तो बी में क्या फर्क है, कि वो कहता है पहले व्हाइट ऑफ ऑरेंज, देन ऑरेंज, फिर व्हाइट ऑफ ग्रीन, फिर ब्लू, फिर व्हाइट ऑफ ब्लू, फिर ग्रीन, फिर व्हाइट ऑफ ब्राउन, और ब्राउन। तो फिर कहते हैं बी। तो अगर एक एंड पे बी है, तो दूसरे एंड पे भी बी बनाए, तो इसको फिर भी कहा जाएगा स्ट्रेट केबल। लेकिन अगर आप दोनों एक एंड पे ए रखें और दूसरे एंड पे बी रखें, तो इसको कहा जाएगा क्रॉस केबल। मुश्किल बात है ना, सिंपल। आपको ये डायग्राम दिया जाएगा, अपने सामने रखो, और बल्कि अगर आप चाहें तो मैं इसका प्रिंट स्क्रीन करके और यहां पे इसको पेस्ट भी कर देता हूं, कंट्रोल V कर, नहीं ये तो, ये जी, ठीक है। तो अगर आप दोनों एंड पे अलग अलग ए और बी स्टैंडर्ड यूज करें, तो देन इट विल बी कॉल्ड अ क्रॉस केबल। यही बात यहां लिखी गई है कि स्ट्रेट केबल में क्या है, या तो बोथ एंड को आप 586A या 586B पे लिखें, और किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। बाय डिफरेंट मीन्स एक तरफ स्विच है, दूसरी तरफ आपका लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, तो डिफरेंट डिवाइसेस है, ठीक है। लेकिन अगर आपने एक एंड पे ए लिया और दूसरी तरफ बी लिया, तो देन इट विल बी कॉल्ड ए क्रॉस केबल। और इस केस में यू कैन यूज दिस केबल जब आप स्विच टू स्विच कनेक्टिविटी करें, या आप होस्ट टू होस्ट कनेक्टिविटी करें, या आप राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी करें, तो उसके लिए आप क्रॉस केबल इस्तेमाल करें। कुछ बात समझ आ गई। अल्दो कि मैं यही प्रेफर करूंगा हमेशा कि आप इसको रूल को वायलेट ना करें। लेकिन आजकल के जितने भी नए डिवाइसेस आ रहे हैं, उनमें एक फीचर इनेबल्ड है जिसको कहते हैं ऑटो MDIX, ऑटो। तो अगर आप ये गलत भी लगा दें केबल, मिसाल के तौर पे आपने एक क्रॉस केबल ली और होस्ट और यानी कि लैपटॉप को अपने स्विच से कनेक्ट किया विद क्रॉस, और दोनों मसला, इसलिए कहता हूं कि मैं एडवाइस ये नहीं करता कि ये करो, क्योंकि हो सकता है आपका NIC कार्ड ऑटो MDX को ना फॉलो करता हो, स्विच करता हो लेकिन ये ना करता हो, या स्विच नहीं करता आपका ये कर रहा हो, तो फिर आप मसले में पड़ जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि आप रूल्स को वायलेट ना करें। क्लियर हो गया मेरी बात।
तो चंद्र जी, आज के लिए इतना काफी। कल हम फाइबर ऑप्टिक केबल के साथ आगे बढ़ेंगे और फाइबर ऑप्टिक केबल में बात करेंगे अबाउट दी कि ये किस चीज से बनता है। तो ये ग्लास से भी बनता है, सिलिका से भी बनता है, और ये प्लास्टिक से भी बनता है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आप ये सिलिका बेस्ड यूज करते हैं, और लैंड्स में जहाँ पे आपको कीमत सस्ती रखनी होती है, आप प्लास्टिक फाइबर भी, जो मैं कल आपको दिखाता रहा, दैट वाज प्लास्टिक फाइबर। और कल जो आप पढ़ाऊंगा तो साथ, कल का मतलब है सैटरडे को पढ़ाऊंगा, तो फिर सिलिका की केबल भी दिखाऊंगा। ठीक है, या अभी अभी ला दो, वो बड़ा वो पड़ी हुई है, ताकि कम से कम ये लोग देख लें कि जनाब फाइबर ऑप्टिक केबल है क्या। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने प्लास्टिक की बना हुआ फाइबर, और ये आपके सामने फाइबर ऑप्टिक केबल जो कि ग्लास की बनी हुई। आप कहेंगे ये तो बड़ी ग्लास नहीं लगती। नहीं, इसके अंदर 18 ग्लासेस पड़े हुए हैं। लाजमी तौर पे इसने किसी जमीन के अंदर दफन होना है, तो इसके ऊपर से ट्रक में भी गुजरना है, तो आप फाइबर नहीं रख सकते कि टक करके टूट जाए। तो लाजमी तौर पे उन फाइबर्स को इन ग्रूव्स के अंदर रखा जाता है, ताकि इस पर प्रेशर भी पड़े तो कुछ भी ना हो। क्लियर? तो कल हम देखेंगे कि ये फाइबर, इस फाइबर में, चाहे ये फाइबर है ग्लास या प्लास्टिक, ये प्लास्टिक ऑरेंज कलर का, और ये ब्लैक में जो आपको नजर आ रही है ये ऑप्टिकल फाइबर केबल है। ये ऑप्टिकल फाइबर केबल लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पे पेशावर इस्लामाबाद के दरमियान में डालनी है, तो ये 18 पेयर। और कल आपने देखा था कि हर एक, कल अगर आपने, शायद आप लोगों को ये बताया था कि जी अब ये हाई प्रॉब्ली मेनी टेराबिट्स पर सेकंड एक फाइबर ले जा सकता है, एक वेवलेंथ पे। उसने लिखा था फी वेवलेंथ।